as we were in Colorado. See, as we were up there, we went back and it had been real dry. Game was scarce. Brother Wheeler, the Lord blessed him and gave him a fine trophy. And we were so happy about that. That's the first time he's ever in woods hunting. And the Lord blessed him. जब हम कोलोराडो में थे, देखो, जब हम वहां ऊपर थे, हम वापस चले गए और मौसम बहुत ही सूखा था। शिकार करना दुर्लभ था। भाई व्हीलर, जिसे प्रभु ने आशीषित किया और एक अच्छे शिकार को दिया, और हम इसके लिए बहुत ही खुश थे। यह पहली बार हुआ था कि उन्होंने कभी जंगल में शिकार खेला था और प्रभु ने उसे आशीषित किया। And then I had shot a big trophy that I had looked for 20 years. Been watching Brother Banks and I been after him for a long time. और फिर मैंने एक बड़े शिकार को निशाना लगाया, जिसके लिए मैं 20 वर्षों से देखते आ रहा था, और मैं उसे देखते आ रहा था। भाई बैंक और मैं बहुत समय से उसके पीछे थे। And when I did, shooting my rifle in down in the hot country, bring it up into a cold, it swelled the stock, although it glass-bedded, and it shot it several inches off and hit the animal standing between trees. और जब मैंने इसे किया, उस गर्म देश में बंदूक से शिकार करते आ रहा था, और इस बंदूक को ठंडे स्थान पर लाना, इसकी नली फूल गई थी, हालांकि कांच मुड़ गया था, और इससे काफी इंच की दूरी से गोली निकली और उस जानवर को जाकर लग गई, जो पेड़ों के बीच में खड़ा हुआ था। Or it ought to hit him lower than that, which would have humanely killed the animal in a second, but it hit him so high, he jumped like he fell like that. जहां इसे नहीं लगना चाहिए था, उससे भी नीचे, जहां कुछ ही क्षण में मानवता में वो जानवर मारा जाएगा, लेकिन इसने इसे बहुत ही ऊपर मारा। वो कूदा और इस तरह से गिर पड़ा। Billy was with me and he said, I got him. I thought it did too, but when we went over there, it wasn't so. He said, you hit a tree. I looked up and now there's no mark on the tree. And then I went to searching for it. और बिली मेरे साथ था और उसने कहा उससे लग गया, और मैंने भी सोचा इसे लग गया, लेकिन जब हम वहां पर गए, यह ऐसा नहीं था। उसने कहा, आपने पेड़ को मारा है। मैंने ऊपर से नीचे तक देखा, वहां पेड़ पर कोई भी निशान नहीं था, और फिर मैंने जाकर इसे ढूंढने की कोशिश की। And then there come a warning sign. There was practically 100 men just above us. And Brother Palmer and them is a witness of that. And Brother Evans, that's right, he was there. Brother Welch Evans and his boy Ronnie, I believe I called him a while ago. और फिर वहां पर एक चेतावनी का चिन्ह आया। वहां पर तकरीबन 100 पुरुष ठीक हमारे ऊपर थे, और भाई पाल्मर और मैं इसके गवाह हैं, और भाई इवांस, ये सही है, वो वहां पर थे। भाई वेल्च इवांस और उनके बेटे रॉनी, मैं सोचता हूँ मैंने कुछ समय पहले उन्हें फोन किया था। And great loads of men had went up above us, what they call the cow camp up there, where the cowboy stays and rides, keeps the cows separated. I used to stay in that camp myself and herd those cattle and keep them apart. और बहुत ढेर सारे पुरुष हमसे ऊपर चले गए, और जिसे वे घुड़सवार चरवाहे कहते हैं, जिनका शिविर वहां ऊपर था, जहां पर वे घुड़सवार चरवाहे रहते हैं और घुड़सवारी करते हैं और उन गायों को अलग करते हैं। वे अक्सर खुद शिविर में रहते हैं और वे उन पशुओं के झुंड के जानवरों को अलग अलग करते हैं। And then, so in there's about 100 men, but anyone knows in that country when a blizzard is forecast, you better get away right now. और तो फिर वहां पर लगभग 100 पुरुष थे, लेकिन हर एक जन उस देश में जानता है, जब एक पूर्वानुमान की सीटी को बजाया जाता है, अच्छा होगा तुम ठीक वहां से अब दूर चले जाओ। That's why Brother Palmer and them left early, because he only had a 3-speed transmission in their car, and they had to get out of there because weather, you're there, and you might stay for weeks. इसलिए भाई पाल्मर और वे बहुत ही जल्द निकल गए, क्योंकि उनकी कार में केवल 3 गति के प्रसार थे, और उन्हें वहां से बाहर निकलना था मौसम की वजह से। यहाँ पर होते हैं तो आपको और शायद हफ्तों तक रुकना पड़ेगा। So they said there is a blizzard coming, the forecast, the papers, the radio, load after load, practically everything from up around in there left out. They're gone right now because they know to get out of there. इसलिए उन्होंने कहा वहां पर एक तूफान की चेतावनी हो रही है। मौसम का पूर्वानुमान और समाचार और रेडियो पर भर भर कर लोग व्यवहारिक रूप से सब चीजें वहां ऊपर हर कहीं से निकलने लगे। उन्हें निकलना था ठीक तभी, क्योंकि वे जान गए थे कि वहां से निकलना है। But my brethren had 2 deer license and they didn't want to go.
So I said, well, we'll stay, but I had a meeting coming up in about 6 days, and I had to go back to Tucson. लेकिन मेरे भाइयों के पास 2 हिरन के लाइसेंस थे और उन्होंने नहीं जाना चाहा, इसलिए मैंने कहा तो ठीक है, हम रुकेंगे, लेकिन मुझे आने वाली सभाओं में जाना है जो लगभग आने वाले 6 दिनों में है, और मुझे वापस तुसान की ओर जाना था। So my little wife, we've been married 22 years, and 20 years on our anniversary I've been up there every time. Just happens to hit me. So I got a little place I always walk out and pray, and it looked like a place where I took her. तो मेरी छोटी पत्नी, हमें विवाह करके 22 वर्ष बीत चुके हैं और 20 वर्षों से हमारी विवाह की सालगिरह पर मैं हमेशा ही उस समय पर वहां पर होता हूं। यह होने पर वहां पहुंच जाता हूं और मेरे पास एक छोटा सा स्थान है। मैं हमेशा ही जाकर और प्रार्थना करता हूं और यह ऐसा स्थान दिखता है जहां पर मेरी पत्नी को लेकर जाऊं। I made kind of a little thing, I didn't have enough money to take a hunting trip and my honeymoon, so I kind of took my wife on a hunting trip for the honeymoon. आप जानते हैं मैंने इन छोटी चीजों को बनाया है। आप जानते हैं मेरे पास इतने पैसे नहीं होते हैं जिससे मैं शिकार के दौरे में या हनीमून में ले जाऊं, इसलिए मैं मेरी पत्नी को शिकार के दौरे पर हनीमून के लिए ले जाता था। So we was in New York, and I remember helping her up over logs and things to get into a place. And I got a little place out there I always think of her when I go there on our anniversary. October 23rd is when the season's open there. And 20 years I haven't been home. Always up there. तो हम न्यूयॉर्क में थे और मुझे याद है मैंने उसकी वहाँ लकड़ी के लट्टे पर और आदि पर एक स्थान पर बैठाने के लिए सहायता की थी। वहाँ पर मेरा एक छोटा सा स्थान है। मैं हमेशा ही पत्नी के बारे में सोचता हूँ जब मैं वहाँ हमारी विवाह की सालगिरह पर जाता हूँ, अक्टूबर 23 तारीख को, जब वहाँ पर मौसम खुल जाता है। और 20 वर्ष से लेकर उस समय में मैं घर पर नहीं रहा हूँ, मैं हमेशा ही वहाँ ऊपर जाता रहता हूँ। So that day was our anniversary. And Brother Man, I said, now if you, brother, and I said to the fire that morning, now if that night, brother, if you all want to stay, now remember, we may be in here for a month. तो उस दिन हमारी विवाह की सालगिरह थी और भाई मेन, मैंने कहा अब यदि आप भाई लोग, तो मैंने उस सुबह आग को सेकते हुए कहा, अब यदि मेरा मतलब उस रात को, यदि आप सब अभी रुकना चाहते हैं तो याद रखना, हो सकता है हम यहाँ पर 1 महीने के लिए रुके रहेंगे। Because I've seen 20 foot of snowfall just in a little overnight. Just you go out there and you're just as dry and nice, and the next morning snows this deep, or maybe over top your tent. क्योंकि मैंने 20 फुट की बर्फ को थोड़े ही समय पर सारी रात में गिरते हुए देखा है। आप बस वहाँ पर बाहर आएं और आपको थोड़ा सूखा और अच्छा लगेगा, और अगले ही सुबह वो बर्फ इतनी ऊंचाई पर आ जाती है, इतनी ऊपर कि हो सकता है आपके तंबू से भी ऊपर हो। So then I said, and then you stay there till that melts off. So you're about 15 to 20 miles back in the wilderness. तो फिर मैंने कहा, और आपको वहीं पर रुके रहना है जब तक बर्फ पिघल नहीं जाती है, इसलिए आप लगभग 15 या 20 मील उस जंगल में पीछे हो। And so then I said, and if it gets emergency, of course they send in helicopters and get you out, but usually they just, nobody perishing, they just have to wait there. इसलिए मैंने कहा, और यदि आपातकालीन होती है, निश्चय ही वे हेलीकॉप्टरों को भेजते हैं और आपको वहां से निकालते हैं, लेकिन अक्सर वे बस कोई भी अत्यधिक ठंड में नहीं निकलता है, उनको वहां पर बस रुके रहना होता है। So everybody scats this as soon as they hear that broadcast, forecast rather. So we were back there, and I said, now you make up your mind. If you want to stay, I'm here to hunt with you, and I'll call my wife and tell her happy anniversary. तो हर कोई भागने लगता है जितना जल्दी हो सके। जैसे ही वे प्रसार को सुनते हैं, मेरा मतलब मौसम के पूर्वानुमान को सुनते हैं, इसलिए हम वहां पर पीछे हैं। और मैंने कहा, अब आपको अपने मन को तैयार करना है। यदि आप यहाँ पर रुकना चाहते हैं तो मैं यहाँ पर आपके साथ शिकार करूंगा, और मैं अपनी पत्नी को फोन करके कहूंगा, विवाह के सालगिरह की बधाई हो। But I said then, in that I will also, we'll get some groceries because we might have to stay in here without a bread then. लेकिन मैंने कहा, तब उस पर ऐसा भी है कि हमें कुछ खाने पीने का सामान लाना होगा, क्योंकि शायद हो सकता है हमें यहाँ पर रुकना पड़े। And I don't want to see any more flapjacks for a long time. And pancakes. So then, I've been eating them in Canada for about 21 days, and I sure had a fill of them things. And so then,
I want to get some bread. और मैं अब बहुत समय तक मालपुआ और उन पेक केक को और नहीं देखना चाहता हूँ, इसलिए कि तब मैं कनाडा में उससे लगभग 21 दिनों से खा रहा था। निश्चय ही मैं उन चीजों से उब गया था और इसलिए तब मैं कुछ रोटी को चाहता था। So they said they wanted to stay, so there wasn't nothing to do to stay. But Brother Man and I went out, and we went down there, and I got the groceries, and I called the wife, and the phone wouldn't answer. तो उन्होंने तभी कहा कि वे रुकना चाहते थे, तो वहां पर करने के लिए कुछ भी और नहीं था रुकने के लिए, लेकिन भाई मैन और मैं वहां से निकल गए और वहां नीचे जाकर कुछ खाने पीने की चीजों को लिया और मैंने अपनी पत्नी को फोन किया और मुझे कुछ उत्तर न मिला। No one answered. So I waited about an hour till we got to the grocery shop, went back, called, she didn't answer. कोई भी उत्तर देने को नहीं था और मैं लगभग 1 घंटे तक रुका रहा था जब तक कि दुकान पर खाने पीने का सामान नहीं ले लिया। मैंने वापस जाकर और फोन किया, उत्तर नहीं मिला। I had to call Sister Evans. I believe Sister Evans is here. And I told, yeah, Brother Evans, Sister Evans is here. और मुझे बहन इवांस को फोन करना था। मैं सोचता हूँ बहन इवांस यहाँ पर हैं और मैंने बताया, जी हाँ भाई इवांस, बहन इवांस यहाँ पर हैं। So I called Sister Evans for Brother Evans and told him. She said, I'll call Sister Branham and tell her. A happy anniversary, of course, you know. So, but she'd gone shopping to get some groceries for the children. तो मैंने बहन इवांस को भाई इवांस के लिए फोन किया और उसे सब बताया। उसने कहा, मैं बहन ब्रैनम को फोन करके और उसे बताऊंगी आपको विवाह की सालगिरह की शुभकामनाएं। निश्चय आप जानते हैं तो, लेकिन वो अपने बच्चों के लिए कुछ खाने पीने का सामान लेने की खरीदारी के लिए गई हुई थी। And then we come back, and the next morning, what was in the skies but clouds? It hadn't rained up there all fall, and it was really dry. And they'd prolong the hunting season a few days extra on account of the dryness. और फिर हम वापस आ गए और अगली सुबह को आकाश में बादलों के अलावा और कुछ नहीं था। मौसम सूखा था, वहां पर बारिश नहीं पड़ी थी और उन्होंने शिकार के समय को स्थगित किया था कुछ और दिन तक के सूखेपन की वजह से। Well, I said to the brother that morning, now the first drop of rain starts to fall, the first snow, the first sleet, anything, take for the camp just as hard as you can, because within 15 minutes you can't see your hand before you. See? तो मैंने उस समय भाइयों से कहा, अब बारिश की पहली बूंद गिरना आरंभ हो गई है। वह पहली बर्फ, वो पहला बर्फ का ओला, जो कुछ भी यह है, जितना हम जल्दी तंबू की ओर जा सकते हैं जाएं, क्योंकि अगले 15 मिनट के अंदर तुम अपने आगे अपने हाथों को भी नहीं देख सकते हो। समझे? And it'll just twist and blow, and I don't care how well you know the country, you're going to stay right there and you'll perish. और ये बस झटका होगा और तेज हवा होगी और मैं परवाह नहीं करता कि आप देश के बारे में कितना अधिक अच्छी तरह से जानते हैं, आप ठीक वहां पर रुक जाएंगे और आप खत्म हो जाएंगे। Because sometimes you can't even breathe. The sleet blowing, so you die right there. And I said, as soon as it starts with that sleet, you take for the camp just as hard as you can. I don't care where you are. क्योंकि कभी कभी आप सांस भी नहीं ले सकते हैं और बर्फ के ओले इतनी तेजी से गिरते हैं, आप ठीक वहां पर मर जाएंगे। और मैंने कहा, इससे पहले वो बर्फ के ओले गिरना आरंभ हो, जितना जल्दी हो सकता है आप तंबू को समेट लें। मैं परवाह नहीं करता आप जहाँ कहीं पर भी हों। Well, I said, go up here and set these gulches, and I'll climb way high and roll rocks over the hill and so forth, scare the deers off the top and run them down. You pick out what you want. तो ठीक है, मैंने कहा, यहाँ ऊपर जाओ और उस पहाड़ी पर बैठ जाओ और मैं ऊपर चढ़कर और उस पहाड़ी पर से पत्थर को लुढ़काऊंगा और इत्यादि, और उन हिरन को वहां ऊपर से डराऊंगा और फिर वहां से नीचे भगाऊंगा। तुम उसे पकड़ लेना जो तुम चाहते हो। So I started climbing high, and by the time I got up to where we call the Saddle, a little place there, and I always cross over to go to a place called Quaker Knob, right on the Continental Divide there, way high. तो मैंने ऊपर चढ़ना आरंभ किया और लगभग समय पर मैं वहां ऊपर पहुंचा, जिसे हम द सैडल कहकर पुकारते हैं, एक छोटा सा स्थान जो मैं हमेशा ही पार होकर जाता हूं, जिसे काउकर नोब कहते हैं, जो ठीक वहां कॉन्टिनेंटल डिवाइड पर है, उस ऊंचाई पर। And when I got to almost this little saddle, the clouds are getting blacker and blacker. Wasn't a car left, just us up there, and a cowboy on the camp. So it got worse and worse. और जब मैं इस छोटी सी घाटी में पहुंचने पर था, वे बादल काले और काले होते जा रहे थे। वहां पर एक भी कार नहीं बची थी, केवल हम लोग ही वहां पर थे। दूर तक वे घुड़सवार चरवाहे छावनी पर थे। तो ये खराब और खराब होता चला गया। So in a few minutes it started raining. Well,
I took my gun and put it under my coat, keep the smoke from smoking up, and stop getting wet, whether run into a bear or something coming back. तो कुछ ही मिनटों में बारिश होना आरंभ हो गई, तो मैंने अपनी बंदूक को लेकर और कोट के अंदर रख दिया और उस बंदूक की दूरबीन को धुएं निकलने की जगह को और उसकी नली को गीले होने से बचाए रखूं, यदि एक भालू या किसी के भी पीछे वापस दौड़ना पड़े. So I held my scope like that and sat down under a tree a little bit, and I sat there and praying. I said, Lord God, you're the great Jehovah, and I love you. इसलिए मैंने अपनी दूरबीन को इस तरह से पकड़ा और थोड़ी देर के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ गया और बैठकर प्रार्थना करने लगा. मैंने कहा, प्रभु परमेश्वर, आप महान यहोवा हैं और मैं आपसे प्रेम करता हूँ. How many experiences have I had? I pointed out to the brother Palmer and them, the places where the eagle, I seen him rise up that day, and how that the places where it all taken place there. कितने लोगों के पास ये अनुभव है जो मेरे पास था. मैंने भाई पलमार और उनकी ओर और उन स्थानों की ओर ध्यान दिया है जहाँ पर वो ऊकाब, आप जानते हैं, मैंने उसे ऊपर उठते हुए देखा है. आप जानते हैं और कैसे ये वो जगह है जहाँ पर सारी बातों ने स्थान लिया था. It's a temperamental thing to me in there. I've had so many great experiences with my Lord up in them mountains. So you just can't go there without seeing Him. He's just everywhere. यह वहाँ पर मेरे साथ एक बड़ी ही स्वाभाविक बात हुई थी. ऊपर उन पहाड़ों पर मुझे प्रभु के साथ मुझे बहुत सारे अनुभव मिले थे. इसलिए आप ऐसे ही नहीं जा सकते हैं बिना परमेश्वर को देखे. वह तो बस हर कहीं उपस्थित है. So then, as I sat there, then the sleet started and the wind twisting like that. And I said, well, I know the way down, but I better get off of here right now. तो फिर जब मैं वहाँ पर बैठ गया तब बर्फ के ओले गिरना आरंभ हो गए और हवा इस तरह से घूम गई और मैंने कहा, तो ठीक है, मैं पर नीचे जाने का मार्ग जानता हूँ, लेकिन मेरे लिए अच्छा होगा अभी ठीक यहीं पर रहूं. So I said, it looked down and I couldn't even see the bottoms no more. Them clouds just whirling and twisting and sleet a-blowing. And there it was, the blizzard, forecast for several days, a big blizzard coming. तो मैंने कहा, वहाँ नीचे देखा और अब मैं नीचे तल को और नहीं देख सकता था. वे बादल वो बिखरे हुए थे और घूम गए थे और बर्फ के ओले उड़ने लगे थे और वहाँ पर बर्फ का तूफान था जिसका पूर्व अनुमान बहुत दिनों से किया गया था. एक बड़ा बर्फीला तूफान आ रहा है. Brother Tom, is your brother Tom Simpson coming down from Canada, heard the forecast, and he was advised not to go through that part of the country because his forecast said that it'll be blizzard. भाई टॉम यहाँ पर हैं. भाई टॉम सिम्पसन जो कनाडा से आए हैं, उन्होंने मौसम के पूर्व अनुमान को सुना था और उन्हें सलाह दी गई थी कि उस देश के भाग की ओर न जाएं, क्योंकि यह मौसम का पूर्व अनुमान कहता है बर्फीला तूफान होगा. Where are you, Brother Tom? I think that, yeah, right here. And the blizzard was coming. Everybody done set in for it. आप कहाँ पर है भाई टॉम? मैं सोचता हूँ, जी हाँ, ठीक यहाँ पर है. और वह बर्फीला तूफान आ रहा था, इसके लिए हर कोई अंदर बैठा हुआ था. Well, I put my gun back under my shirt like this, my red shirt, started walking down the mountain. And as I started, I got about a half a mile from the saddle, and oh my, the big drops of snow like that, and the wind twisting up on that mountain and blowing. तो मैंने अपनी बंदूक को मेरी लाल छड़ के अंदर वापस इस तरह से रखा और पहाड़ के नीचे चलकर उतरना आरंभ किया. और जब मैंने आरंभ किया, मैं घाटी से लगभग आधा मील दूर चला था और ओह प्रभु, बड़ा बर्फ का ओला इस तरह से और हवा बदल गई उस पहाड़ पर और जोर की हवा आने लगी. I couldn't see the bottom no more. I could see about 20 feet in front of me at 30. I know to come right down this little, what we call a little hogback, little ridge, and come off to the creek, and then I know to follow the creek and where to go to if it got real bad. मैं अब समतल को और नहीं देख सकता था. मैं लगभग 20 फुट या 30 फुट तक मेरे सामने देख सकता था और मैं जानता था थोड़ा और आगे जाने पर, जिसे हम छोटा हॉगबैक कहते हैं, छोटा सा टीला और फिर नीचे सकड़ी खाड़ी आएगी और फिर मैं जानता था सकड़ी खाड़ी में चलते जाना है और किस ओर जाना है यदि ये वास्तव में खराब नहीं हुआ है तो. And so then I started down and got about halfway down there, and something said to me, just as plain as you hear me, stop and go back. और तो फिर मैंने नीचे बढ़ना आरंभ किया और लगभग आधे रास्ते तक वहां चला गया और किसी ने मुझसे कहा, जितना आप मुझे साफ साफ सुन सकते हैं उतना साफ, रुको, वापस पीछे जाओ. Well, I thought, what was I thinking about? Maybe just my mind, and I just couldn't make another step forward. तो मैंने सोचा मैं किस बारे में सोच रहा था. हो सकता है
यह बस मेरा ही मन हो और मैं एक भी कदम और आगे नहीं बढ़ा पाया। David had fixed me a sandwich that morning, and I think he tried to get even with it for fixing his daddy one time of onion and honey. That's all we had. डेविड ने मेरे लिए उस सुबह को एक सैंडविच बांध कर दिया था और मैं सोचता हूँ उसने अपने पिता के लिए भी सैंडविच लाया था। एक बार हमने प्याज और शहद का सैंडविच खाया था, बस यही सब हमारे पास था। So he fixed me a bologna and I don't know what all it was wrapped in there. I had it in my shirt and it done got wet through my shirt. I thought I'll just stop and eat this and maybe it'll be all right then. इस बार उसने मुझे कीमे का सैंडविच बांध कर दिया था। ओह, मैं नहीं जानता ये सब कैसा हो गया था। उसमें लपेटा हुआ था और यह मेरी शर्ट में था और ये मेरी शर्ट में से होकर गीला हो गया था। मैंने सोचा मैं जरा रुक कर और इसे खाऊंगा और हो सकता है ये तब सब सही हो जाएगा। So I pulled out the sandwich about 10 o'clock and I started eating the sandwich. And as I eat the sandwich, I thought, now I'll be all right. इसलिए मैंने सैंडविच को निकाला। लगभग 10 बजे की बात है और मैंने सैंडविच को खाना आरंभ किया और जब मैं सैंडविच को खा रहा था मैंने सोचा अब मुझे ठीक लगने लगेगा। And I started to move on, but something said, go back where you come from. Go back to that storm. Half a mile or more back up the mountain into that dark timber where you can then hardly see as far as that organ. और मैंने आगे बढ़ना आरंभ किया, लेकिन किसी ने तो कहा वापस जाओ जहां से तुम आए हो। उस तूफान में से होते हुए वापस एक आधा मील या और पीछे पहाड़ पर उस अंधेरे वन में जहां से आप मुश्किल से ही दूर दूर तक किसी साधन को भी देख नहीं सकते हैं। But I'm getting to be an old man, and I've been a Christian now for 33 years, and I know no matter how ridiculous it seems, mind the Lord. Do what the Lord said. लेकिन मैं एक बूढ़ा व्यक्ति हो रहा हूँ और मैं पिछले 30 वर्षों से एक मसीह रहा हूँ और मैं जानता हूँ कोई फर्क नहीं पड़ता ये कितना मूर्खतापूर्वक दिखाई देता है। प्रभु को सोचे, उसे करें जो प्रभु करने के लिए कहता है। And I turned and went back to the saddle, feeling my way back. Oh, sleep getting harder and harder, getting darker and darker. And I sit down there and just put my coat up like this, or my shirt over the scope against that. And I thought, what am I doing here? Why would I come back up here? और मैं मुड़कर और वापस खाड़ी की ओर जाने लगा। मेरे वापसी के रास्ते को समझने लगा। ओह, बर्फ के ओले बढ़ते और बढ़ते जा रहे थे। अंधकार गहरा और गहरा होता गया और मैं वहां पर बैठ गया और मेरे कोट को इस तरह से वहां पर रख दिया और मेरी शर्ट के अंदर दूरबीन को रख दिया और नीचे बैठ गया। मैंने सोचा मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ ऊपर वापस क्यों आया हूँ। And I just waited a few minutes and I started to get up again, and just as plain as I ever want to hear, a voice said, I am the creator of heavens and earth. I make the winds and the rain. और मैं कुछ मिनट तक रुका रहा और फिर से उठ खड़ा हुआ और मैंने इतना साफ जो कि मैं कभी सुनना चाहता हूँ, एक आवाज ने कहा, मैं धरती और आकाश का सृष्टि करता हूँ, मैंने हवाओं और बारिश को बनाया है। I took off my hat. I said, Great Jehovah, is that you? He said, I was the one who made the winds to cease upon the sea. मैंने अपनी टोपी को उतार दिया। मैंने कहा, महान यहोवा, क्या यह आप हैं? उसने कहा, मैं ही वो एक हूँ जिसने हवाओं को समुद्र पर से शांत किया। I was the one who made the waves to go down. I created heavens and earth. Was I not the one that told you to speak to those for squirrels and they come into existence? I am God. मैं ही वो एक था जिसने लहरों को नीचे किया। मैंने आकाश और धरती को बनाया है। क्या मैं नहीं था? क्या मैं वो नहीं था जिसने तुम्हें बताया कि तुम उन गिलहरियों के लिए बोलो और वे अस्तित्व के अंदर आ गई? मैं परमेश्वर हूँ। Now, when a voice speaks to you, what's the scripture? If it's not scriptural, you leave it alone. I don't care how plain it is. You stay away from it. अब जब एक आवाज आपसे बातें करती है, वचन से देखो। यदि ये वचन से नहीं है तो आप उसे
ऐसे ही छोड़ दें। मैं परवाह नहीं करता ये कितनी साफ है, आप इससे दूर रहें। I said, yes, Lord. He said, speak to those winds in that storm, and it'll go away. Now this Bible lays before me, which my life is in that. मैंने कहा, हाँ प्रभु। उसने कहा, तूफानों और आंधियों से बोलो और ये दूर चले जाएंगी। अब यह बाइबल मेरे सामने रखा हुआ है, जिसमें मेरा जीवन है। I raised up, I said, I do not doubt your voice, Lord. I said, clouds, snow, rain, sleet, I resent your coming. In the name of Jesus Christ, go to your places. I say that the sun must come out immediately and shine for 4 days till our hunting trip is over and I leave with my brethren. मैं उठ खड़ा हुआ और मैंने कहा, मैं आपकी आवाज पर संदेह नहीं करता हूँ प्रभु। मैंने कहा, बादल, बर्फ, बारिश, ओले, मैं तुम्हारे आगमन को वापस भेजता हूँ। यीशु मसीह के नाम में अपने स्थान में वापस चले जाओ। मैं कहता हूँ, उस सूर्य को तुरंत ऊपर आना अवश्य है और 4 दिनों तक चमकना है, जब तक हमारे शिकार का दौरा पूरा नहीं हो जाता और मैं अपने भाइयों के साथ निकल नहीं जाता। It's just gushing, just like that. And it started going, and I went, stopped. ये हवा का झोंका था, वहां से जाते हुए वुश इस तरह से, और इसने जाना आरंभ किया। जाते हुए वुश फिर से चला गया। व्यू 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 बंद हो गया। I stood real still. My brethren up there wondering what was happening. And the sleet, rain stopped. There came a wind whirling down through the mountains, lifted up the clouds. मैं स्थिर खड़ा रहा। मेरे भाई वहां ऊपर सोच रहे थे क्या घटित हो रहा है, और वे ओले और बारिश रुक गई और कुछ हवा पहाड़ों में से होती हुई आई और बादलों को ऊपर उठा लिया। One went this way, east, north, west, and south. And within a few minutes, the sun was shining nice and warm. That's truth. God knows that's truth. और कुछ यहाँ चले गए, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, और कुछ ही मिनटों में सूर्य सुंदर तरीके से चमकने लगा और गर्म होने लगा। यह सत्य है, परमेश्वर जानता है, यही सच्चाई है। I just stood there, just looking around with my hat off, looking. You say, I got numb all over. I thought the very God of creation, it's all in His hands. What's He telling me? मैं बस वहां पर खड़ा होकर केवल यहाँ वहां देखने लगा। मेरी टोपी को उतारते हुए मैं देख रहा था। मैंने, आप कहेंगे, मैं पूरी तरह से सुन्न हो गया था। मैंने सोचा, ये वही सृष्टि का परमेश्वर, यह सब उसी के हाथ में है जिसे वो मुझे बता रहा था। And I picked up my gun, wiped off the scope, started to walk back, go down the hill, and something said to me, why don't you stroll with me through this wilderness? Walk with me. और मैंने अपनी बंदूक को लिया, उसके दूरबीन को साफ किया, वापस नीचे घाटी की ओर जाना आरंभ किया, और किसी ने मुझसे कहा, तुम मेरे साथ इस जंगल में सैर करने क्यों नहीं चलते हो? मेरे साथ चलो। I said, yes, Lord, with all my heart. It would be one of the greatest things I could do was walk with you. So I put my gun over my shoulder and I started walking down through that never an axe laid in a virgin timber, walking through there. मैंने कहा, हाँ प्रभु, मेरे पूरे हृदय से यह मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात होगी जिसे मैं कर सकता हूँ कि आपके साथ चलूं। तो मैंने अपने बंदूक को अपने कंधे पर रखा और उसमें से होकर चलना आरंभ किया। वहां कभी एक कुल्हाड़ी भी नहीं चलाई गई थी। वो एक अछूता वन था जिसमें से होते हुए चलना आरंभ किया। And as I did, walked along, down along these game trails, I felt like I believe I will go up to the place where yesterday was our anniversary, and I will stand there just a few minutes, just as a little salute to Meaty, or it's a little bunch of quaking ass up on a little knob. और जब मैं साथ ही चलने लगा शिकार की पंगडंडियों में से होकर, मैंने ऐसा महसूस किया जैसे मैं सोचता हूँ कि मैं उस जगह पर जाऊंगा जहाँ कल हमारी विवाह की सालगिरह थी,
और मैं वहां पर कुछ मिनटों के लिए खड़ा रहूंगा, मेढा को जरा सा सलाम करने के लिए, जहां पर छोटे बिल पर एक विषैले सांप का झुंड था। And I said, I believe I'll walk up there just as a salute to our anniversary. Then I'll go back down on this other side in these dark timbers and walk around and go around over about towards Corral Peaks and come back down that way. Just walking and rejoicing. और मैंने कहा, मैं सोचता हूँ मैं वहां ऊपर जाकर मैं अपनी विवाह की सालगिरह को एक सलाम दूंगा, फिर मैं वहां वापस नीचे दूसरी तरफ जाऊंगा उस घने जंगल में, और यहाँ वहां चलूंगा और यहाँ वहां जाकर और कोरल शिखर की ओर जाऊंगा और फिर से वापस उस मार्ग में आ जाऊंगा। बस चलते जा रहा था और आनंद कर रहा था। I was saying, Father, I know you are walking with me, and what a privilege! There's nobody greater I could be walking with. The very God in that warm sunshine. मैं कह रहा था, पिता, मैं जानता हूँ आप मेरे साथ चल रहे हैं, और क्या ही सौभाग्य की बात है, कोई भी इतना महान नहीं है जिसके साथ मैं चल सकूं, उसी परमेश्वर के साथ। और वहां गर्म सूर्य चमक रहा था।